Focus now. The smog in Delhi is persistent, with the air quality index of the national capital continuing to hover in the severe category. The average AQI in Delhi stands at 292. Areas such as Anand Vihar, Bhavana, Jahangirpuri, Mundka, Rohini and Wazirpur also recorded severe AQI levels ranging from 401 to 408. The Dilshad Garden area of the national capital recorded the lowest AQI among the 40 monitoring stations at 301. It was still classified as very poor. Meanwhile, Delhi's Indira Gandhi International Airport has issued an advisory for passengers as visibility remains low. Along with that, over 150 flights at the airport have been delayed so far. Now let me take you through the various AQI levels across Delhi NCR. Now as you can see on your screens, the overall AQI in New Delhi as of now stands at 371, which is still in the severe category. Now just for information, AQI below 50 is considered to be in the safer limit. So we are way past that. The air in Delhi has been in this severe category for weeks now. Let us now also look at the various AQI levels across Delhi NCR region. As you can see, a whole lot of purple dots which signify that the AQI is in the severe category in all these regions. These red dots that we're seeing mean that this AQI at this place is now at hazardous levels. So if I could just walk you through this, if I just go and see, the AQI at Mandir Marg in New Delhi stands at 350, which is in the severe category. AQI meanwhile at Ghaziabad is at 415, which is in the hazardous category. If I go across now to around the IGI airport in the Aerocity, we can see that the AQI is 358, which is in the severe category. You can also see the AQI trends in the past 24 hours as well. Where in this AQI right now, you can see this graph shows that the AQI has remained in the range of severe to hazardous. Now coming back, we can also see that AQI here at Pusa in Delhi is at 353, which is again in the severe category. AQI at AQI at New Delhi's US Embassy, the area around the US Embassy, stands at 366, which is again in the severe category. AQI at HT House in Delhi stands at 370, which is again in the severe category. AQI around the Embassy of Belgium in New Delhi stands at 370, which is again in the severe category. We can also see that Chanakya Place, the AQI stands at 418, which is in the hazardous category. So this place, we can also now see that AQI at Pocket 1 in New Delhi is also at 311, which is in the serious category as well. Now if I go across to Delhi Golf Club, I can see that the AQI stands at 358, which is again in the severe category. Now I am being joined by my colleagues Aditya Vadhavan, live from New Delhi, and Ali Khan, live from Noida, as well as Anil Chaudhary, live from Ghaziabad. I would like to go across to my colleague Aditya. First of all, Aditya, you are in New Delhi right now. What is the AQI level there right now? What is the visibility like as well? We are just Delhi and completely a toxic smog has engulfed the entire Delhi, and definitely at this juncture, the AQIs in some areas have crossed to 450 level, 450 mark, which is considered the hazardous category. And as far as the visibility is concerned, partially visibility is there at this juncture. However, if you see the traffic flow is very normal despite these grab restrictions. Because considering the fact that vehicle air pollution is one of the factor that causes pollution across Delhi NCR. There has been no reduction in the number of vehicles taken out by the citizens, despite the grab measures have been imposed. And due to this,
as you can see, I'm wearing a mask at this juncture. Definitely, the pollutants in the air, the PM 2.5, this is absolutely causing irritation in the ears and eyes, and definitely going forward, the situation, the pollution situation in Delhi is set to get worse. Considering the fact that this has become a routine every year, that during the months of October, November, and December, pollution levels spike to an unprecedented levels. Delhi always win the accolades of being the polluted city across in the world. So at this juncture, now it is time, that there are strict measures, need to be taken. A comprehensive practical solution needs to be implemented across Delhi NCR, so that the citizens of Delhi can breathe good air during these months. Every year, Delhiites are forced to breathe this foul air in these months of October, November, and December. So, at this juncture, it is essential that, some strict measures and practical steps are followed to ensure the same. Yes, Medha, back to you. Aditya, I would request you to please stay on with me. I'm also being joined by Ali Khan live from Noida. Ali, what is the AQI there at Noida right now? What is the visibility like? नोएडा की एक्यूआई की बात करें मेरा, तो आज नोएडा में एक्यूआई 360 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। एवरेज एक्यूआई है कि जगह अलग अलग जगहों की बात करें, सेक्टर 1 की बात करें तो 370 का एक्यूआई है। वहीं नोएडा के सेक्टर 116 की बात करें तो 390 के आसपास का एक्यूआई दर्ज किया गया। कई ऐसी जगहें भी हैं जहां पे एक्यूआई 400 के पार भी दर्ज किया जा रहा है। तो एक्यूआई की स्थिति अभी भी खराब स्तर पे बनी हुई है। वहीं अगर बात करें पिछले 2 दिनों में, कल और आज की बात करें, तो कुछ एक्यूआई पिछले 2 दिनों से बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार 450 के आसपास दर्ज किया जा रहा था। पर आज कुछ स्थिति हल्की सी बेहतर सुधार की तरफ रही, क्योंकि लगातार 2 दिन से फिर हवाएं चली हैं। जैसे जैसे हवा का दबाव बढ़ा है, हवा की स्पीड बढ़ी है, एक्यूआई के स्तर में सुधार आता नजर आ रहा है। वहीं अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी फॉग और स्मॉग की दोहरी मार दिल्ली एनसीआर वासी झेल रहे हैं, क्योंकि लगातार फॉग भी पड़ रहा है और साथ साथ स्मॉग भी पड़ रहा है। आज की बात करें तो आज काफी बेहतर है, आज फॉग भी कम है और स्मॉग की लेयर तो नजर आ ही रही है आसमान में, पर लगातार लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। वही ट्रैफिक विभाग लगातार काम कर रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जो खुद डीसीपी ट्रैफिक है नोएडा के, वो लगातार ग्राउंड पे रह के फॉग वाली जगहों पे, क्योंकि जितनी भी एक्सप्रेसवेज है वहां पे कॉन्वॉय सिस्टम को लागू करा रहे हैं। अगर ज्यादा फॉग होता है, 50 मीटर से कम की विजिबिलिटी होती है, तो गाड़ियों को हॉल्ट करा लिया जाता है। तो ये तमाम ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि फॉग से कोई एक्सीडेंट ना हो, फॉग और स्मॉग के चलते। वहीं पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन, गले में खराश और जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं से लोग दो चार हो रहे हैं। वहीं ये बेहद परेशान करने वाली बात है कि लगातार एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि अगर इस हवा को रेगुलरली हम लोग इनहेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज्यादा है इसके। आपको कार्डियक अरेस्ट, लंग कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। तो बेहद खराब स्थिति। वहीं ग्राफ 4 के तमाम नियम लागू कर दिए गए, पर कहीं ना कहीं जो नियम लागू करे गए उन्हें धरातल पर उतारने का काम नोएडा अथॉरिटी का है, जो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है। उसको लेके भी तमाम सीक्यूएम ने भी पूछा है कि अगर क्या कमी आ रही है, क्या समस्या है। ग्राफ 4 के नियम लागू कर दिए गए, वहीं पॉल्यूशन में फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। तो पॉल्यूशन में सुधार ना होने की मुख्य कारण ये भी है कि ग्राफ 4 के नियमों की तमाम खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो खुलेआम कोयले वाली भट्टी और लकड़ी के तंदूरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बदस्तूर जारी है। जगह जगहों पे ओपन एरिया में चोरी छुपे कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी जारी है, जिसे नोएडा अथॉरिटी का काम है रुकवाना। 14 टीमों का गठन तो किया गया है, जिनका काम निगरानी करना और लोगों को जागरूक करना है, पर कहीं ना कहीं वो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं लगातार नोएडा अथॉरिटी बात करती है कि वाटर स्प्रिंकलिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग की जाती है, कई सौ किलोमीटर की सड़कों पर रोजाना की जा रही है, पर वो वाटर स्प्रिंकलिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग भी कहीं ना कहीं नाकाफी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार इम्पैक्ट नहीं आ रहा है कोई उसका। और जो मुख्य मार्ग है सिर्फ उन्हीं पे हो रही है, जो मेन ट्रैफिक वाले मार्ग हैं जहाँ और अंदर की जो सड़कें हैं उन पे वाटर स्प्रिंकलिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग होती हुई नजर नहीं आ रही। तो जिसके चलते बेहद एक्यूआई में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। कोई ऐसा, अब जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो भी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं, इम्पैक्टेड सोल्यूशन चाहते हैं, जिससे ये जो रोजाना हर साल की होने वाली समस्या है उससे सुधार आ सके। मेधा। Ali, I would request you to please stay on with me. I also have my colleague Anil Chaudhary live from Ghaziabad. Anil, अभी आप गाजियाबाद में हैं, वहाँ AQI कैसा है, विजिबिलिटी कैसा है, क्या कुछ चेंज आया है, बुरा हुआ है या थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, क्या सिचुएशन है? जी जी बिल्कुल। देखिए, कल और आज की अगर तुलना की बात की जाए तो कल से आज में थोड़ा सा फर्क जो है
कोहरे में जरूर देखने को मिला है, क्योंकि बीते 2 दिन से लगातार कोहरा और पोल्यूशन का जो मिश्रण है वो सड़कों पर घना देखने को मिला है, जिससे लोगों की कहीं ना कहीं रफ्तार रुकी थी और कई निर्णय भी लिए गए और कई स्टेप भी इसीलिए उठाए गए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दुर्घटनाएं हाईवेज पे आ रही हैं, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दे दिए गए हैं। जितने भी नेशनल हाईवे हैं वहां पर लगातार लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है। लोगों की जो स्पीड की जो स्पीड थी उसको घटाकर कम कर दिया गया है और साथ ही ब्लैक स्पॉट चिन्ह लिए गए हैं। वहां पर जो है एम्बुलेंस रहेगी, फायर सेफ्टी की जो टीम है वो मौजूद रहेगी हाईवे पर, और मेडिकल की जो टीम है वो भी हाईवे पर मौजूद रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से दुर्घटनाएं बढ़ रही थी उसको देखकर ये कदम उठाए गए हैं। वहीं AQI की अगर बात करें तो कुछ क्षेत्रों का AQI अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। जैसे कि वसुंधरा इलाके की बात करें तो 400 के पास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल का दर्ज किया गया है। वहीं इंदिरापुरम की बात करें तो 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और संजय नगर की बात की जाए तो संजय नगर का भी 350 है। और जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी क्षेत्र है वहां पर 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का अब दम घुटने लगा है, लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश, इस तरीके की समस्याएं लोग लेकर अब डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं, और डॉक्टर्स की तरफ से भी लोगों को एडवाइस दी जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें, और निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कर लें। इस तरीके का लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि अब जो दिल्ली NCR की हवा है वो इनहेल करने लायक नहीं बची है, बेहद खतरनाक श्रेणी में है। और ऐसे में ग्रेफ 4 के नियम भी लागू किए गए हैं। उन नियमों के अनुसार जो टीमें हैं वो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे वो कारखाने हो या फैक्ट्री हो या कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार जो धुएं का गुब्बार है वो उगल रही हैं। तो उनको मॉनिटरिंग करने के लिए एक रियल टाइम मैनेजमेंट की तैयारी अब की गई है गाजियाबाद में। और गाजियाबाद की जो टीमें हैं, जो चाहे वो नगर निगम हो या पोल्यूशन बोर्ड की जो टीमें हैं, वो लगातार यही मॉनिटरिंग कर रही हैं कौन कौन सी कंपनियां, कौन सी फैक्ट्रियां, कौन से कारखाने जो नियम के विरुद्ध चल रहे हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है और उन पर सख्त एक्शन की अब प्लानिंग चल रही है। हालांकि उनको नोटिस देकर ये बताया जा रहा है कि आप सुधर जाइए और जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करिए। तो जो लोग नहीं मान रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी, और साथ ही जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि फिलहाल ग्रेफ 4 के नियम लागू हैं और आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की बातें साफ तौर पर अब कह दी गई हैं। अब देखना यही होगा आखिरकार कब तक लोगों को इस पोल्यूशन से राहत मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों का ढुलमुल रवैया देखने को मिल रहा है, लापरवाही देखने को मिल रही है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि पोल्यूशन का जो ग्राफ है आने वाले वक्त में और बढ़ I'm सकता है। so sorry to interrupt you, but we're running a little short on time. With that, I would like to thank all my colleagues, Aditya Vadhavan, Ali Khan, and Anil Chaudhary for bringing us all those updates. With that, I sip into a short break. Thank you for watching.